Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 14, normal distribution is continued today. Lecture number 12 and the topic is under discussion, inverse use of area table under the standard normal curve. In this topic, students, we have to calculate the value of quartiles, deciles and percentiles in with the concept of inverse use of area table. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic, inverse use of area table under the standard normal curve. In the contents of this lectures, at the first point, I will discuss area table under the standard normal curve with the concept of inverse use of area table. In the second point, I will discuss an important exercise question in which we have to find the value of quartile, deciles and percentiles. Now students, in the second point, I will discuss the area table to find the point using the area under the standard normal curve. This is the area table under the standard normal curve Z. How can we understand the inverse use of area table? For example, we have to find a point that has below 95% area below it, और 95% एरिया जो है वो आपको फॉल कर रहा है एक पॉइंट x के अगेंस्ट, तो z में वो पॉइंट जो है वो आपके पास टू द राइट होगा और आपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो एरिया है विच इज़ 0.550 और राइट साइड पे एरिया जो है वो भी आपका कंप्लीट 0.5 है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अपने 95% एरिया को जब हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये एरिया जो होगा 0 टू z विच इज़ 0.45। तो अगर इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे तो इट मीन्स कि आपके पास 95% एरिया जो है वो कवर हो जाएगा दिस और बिलो दिस पॉइंट, जो पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं x का। तो अब आपने स्टूडेंट्स 45% जो एरिया है इसको हम लोग एरिया टेबल में चेक करेंगे और z का पॉइंट जो है इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो z के पॉइंट के लिए आपने जो है वो आपके पास जो एरिया है यहाँ पे आप फाइंड करें ये सारे एरियाज में 0.45 के नियरेस्ट जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे और ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है 0.4500 जो है ये 0.4495 this one and 4.4505 both of the areas are nearest to 0.45 और ये आपके पास करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू z आपके पास अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 1.6 और अगर टॉप पे इसको देखें तो 1.64 भी आप राइट कर सकते हैं और 1.65 ये भी राइट कर सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है इनके मिडल में तो ये आपके पास यहाँ पे 1.645। तो स्टूडेंट्स आपके पास z की वैल्यू जो जनरेट होगी जब आप 1.45 को टेबल में इन्वर्सली यूज चेक करेंगे तो ये 1.645 आपके पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू विच कवर्स द 45% एरिया फ्रॉम 0 टू z और कंप्लीट जो है वो 95% एरिया आपके पास कवर हो जाता है ऑन दिस प्रिसीडिंग दिस पॉइंट। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट को। Now students, I am going to start an exercise question. In this exercise questions, in a normal distribution, mu equal to 300 and sigma square equal to 100, we have information mean 300 and variance equal to 100. Find the value of, in the first part, we have to find the value of Q1 and Q3. Q1 covers 25% data and Q3 covers 75% of our data. In the second part, we find the value of D9 and D9 means that 90% observations cover under the value of D9. In the third part we have to find the value of P10 and P10 means percentile 10 and 10% observations covers under the value of P10. So in this question students we have to find the value of Q1, Q3, D9 and P10 quartile, decile and percentile with the concept of inverse use of area table उसको यूज करेंगे और उससे हम लोग जो है फाइंड करेंगे अपनी दी वैल्यूज को क्वार्टाइल्स की, डिसाइल्स की एंड परसेंटाइल्स की यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। First part, we have to find the value of the load quartile Q1 using the following information: mean mu equal to 300 and sigma standard deviation equal to 10. First of all students मैं ड्रॉ करूंगा अपनी डायग्राम को और फर्स्ट आपने अपनी x की लाइन को ड्रॉ करना है। x is your data, have mean 300 and sigma equal to 10। देन फिर आपने अपना नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करना है और नॉर्मल का कर्व जो है सिमेट्रिकल शेप में, बेल शेप में आपने स्टूडेंट्स अपने इसको ड्रॉ करना है x की लाइन के बिल्कुल अगेंस्ट और देन फिर आपने इसके एरियाज को शो करना है। 50% डाटा जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे होगा
और 50% डेटा आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है। और देन स्टूडेंट्स आपने इसकी मीन वैल्यू को राइट करना है, और मीन वैल्यू को मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर दिया। और मीन बिल्कुल आपके पास मिडल में लाई करेगा ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन की वैल्यू आपकी 300 है। और देन आपने Q1 की वैल्यू जो है उसको ड्रॉ करना है अपनी एक्स लाइन के ऊपर, और एक्स लाइन के ऊपर हम लोग इसको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे Q1 की वैल्यू जो है वो 25% डेटा जो है टोटल ऑब्जर्वेशंस का 25% जो है वो कवर कर लेता है। द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू जो है वो 25% ऑब्जर्वेशंस को कवर करेगी। तो आपके पास यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे मैं इसको वैल्यू को जो है लाइन को ड्रॉ कर लूँगा और इसको Q1 कहेंगे। और देन स्टूडेंट्स आपने अपनी Z की लाइन जो है बिल्कुल X की लाइन के पैरेलल जो है इसको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे QZ जो है वो आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कर्व जो है अगेंस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा है। तो मीन वैल्यू जो है वो आपके पास Z की 0 है, उसको राइट करेंगे बिल्कुल अगेंस्ट द एक्स वैल्यू के मीन के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो आपने 0 को राइट करना है। और देन आपने इन्वर्स इन्वर्सली आपने यूज़ करना है यूजिंग एरिया टेबल इन्वर्सली वी गेट द जेड वैल्यू। और अब हम लोग जेड वैल्यू को फाइंड करेंगे यूजिंग इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। तो स्टूडेंट्स आपने एरिया टेबल में जाना है और वहाँ पे आपने एरिया जो है उसको फाइंड करना है। तो आपके पास 0.25% एरिया जो है कवर हो रहा है अंडर द वैल्यू ऑफ Q1, और रिमेनिंग एरिया जो है वो आपके पास 0 to Z वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे 0.25 होगा रिमेनिंग एरिया। और इसको हम लोग अपने एरिया टेबल में जो है फाइंड करेंगे एरिया को, और उसके अगेंस्ट जो है हम लोग z की वैल्यू जो है, जैसे ऑलरेडी हम उसको फाइंड कर चुके हैं, तो z की वैल्यू जो है आपने इसको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है वहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली। और वर्टिकली आप सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे 0.6 है, और देन फिर आपने इसका पॉइंट जो है वर्टिकली टॉप से देखना है वो 7 पोजीशन पर होगा। तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राइट करना है 0.67 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। और -0.67 आपके पास जी की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इसको आप लोग यहाँ पे जी से भी राइट कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। और देन स्टूडेंट्स आपने अपना जी का फॉर्मूला राइट करना है और फाइंड करनी है क्यू की वैल्यू c इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और x की जगह पे हम लोग जो है वो फाइंड कर रहे हैं Q1, इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे म्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 300 सिग्मा 10, और z की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे -0.67। और देन स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.67 मल्टीप्लाई बाई 10 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन के साथ, और 300 आपका लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा। और आपके पास फाइनल जो Q1 की वैल्यू जनरेट होगी विच इज़ 293.3 ये आपके पास Q1 की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली है। और इन दिस वे स्टूडेंट्स हम लोग इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल जो है उसको यूज करते हुए हम अपनी Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व। तो आपने फर्स्ट जो है लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू जो है इस तरह से फाइंड करनी है। Same part, we have to find the value of the upper quartile Q3, and Q3 covers 75% of the observations using following informations: mu equal to 300 and sigma equal to 10। फर्स्ट स्टूडेंट सिमिलर पैटर्न पे मैं ड्रॉ करूंगा एक्स की लाइन, और उसके अगेंस्ट जो है वो हम नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल का कर्व आपके पास बिल्कुल एज अ बेल शेप्ड होगा, नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और मीन जो है वो आपके पास बिल्कुल मिडल में राइट किया जाएगा डॉटेड लाइन के साथ, मैंने इसको शो कर दिया है मीन इक्वल टू 300। और देन अपने Q3 की वैल्यू जो है इसको आपने प्लॉट करना है अपनी एक्स लाइन के ऊपर। तो ये आपके पास Q3 कवर्स 75% ऑब्जर्वेशंस, तो एक्स की आपके पास 75% ऑब्जर्वेशंस कवर होगी, तो ये मीन्स दैट कि आपके पास इसको आपने राइट करना है राइट साइड के ऊपर। तो मैंने इसको राइट साइड के ऊपर जो है इसको ड्रॉ किया इसकी लाइन को, और इसके बैक पे जो है वो 75% डाटा कवर हो रहा है, और इसके अपर जो है वो आपके पास यहाँ पे 25% डाटा कवर हो जाएगा। इट मीन्स डैट के टोटल जो है वो 100% डाटा कवर हो जाता है। तो अंडर द वैल्यू ऑफ Q3 कवर 75% डाटा, और रिमेनिंग आपके पास 25% डाटा रह जाएगा। तो इट मीन्स डैट के आपके पास 0.50 को प्लस करते हैं 0.25 में, तो आपके पास टोटल
0.75 होगा। तो इट मीन्स डेट कि आपके पास यहाँ पे 0 to Z जो है एरिया वो आपके पास 0.25 है, और 0.25 को हम इन्वर्सिटी टेबल में यूज देखेंगे और इसमें जी की वैल्यू को जनरेट करेंगे। तो देन स्टूडेंट्स फिर आपने इसके बिल्कुल एक्स के पैरेलल जी की लाइन जो है इसको आपने ड्रॉ करना है, और जी का मीन ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो राइट कर दें, मीन आपका बिल्कुल मिडल में। और देन आपने एक्स जी की वैल्यू को फाइंड करना है यूजिंग एरिया। तो आपने अपने एरिया टेबल में जाना है और वहाँ पे आपने 0.25 को इन्वर्सली यानी एरिया में आपने फाइंड करना है, और वहाँ से उसके अगेंस्ट जो है आपने अपनी जी की वैल्यू जो है इसको जनरेट करना है। तो ये आपके पास 0.67 पर पड़ी होगी आपका एरिया 0.25। तो आपने लेफ्ट पे यानी वर्टिकली आपने 0.6 को देखना है और टॉप से 7 पे, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपके पास विद पॉजिटिव साइन जो है आपके पास जी की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपने जी फॉर्मूला आपने राइट करना है और Q3 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो z इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा, और x की जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे Q3, और मीन की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 300, सिग्मा 10 है, और z जो है वो हमने फाइंड की है वैल्यू 0.67। स्टूडेंट्स इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और 300 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई बाई 10, और देन आपके पास जो फाइनल आंसर होगा Q3 का 306.7, 306.7, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q3। और ये आपके पास Q3 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है यूजिंग इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल, और यहाँ से हम लोग जो है वो एक्स की डेटा को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि एक्स के डेटा का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कवर कर रहा है 75% ऑब्जर्वेशन विच इज़ Q3। Students, in the second part, find the value of the ninth decile, that is D9. And D9 means 90% observations cover under the value of D9. जो भी आप D9 की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी डेटा सेट की, एक्स डेटा सेट की, उसमें आपके पास उस डेटा सेट की 90% ऑब्जर्वेशन जो है वो कवर हो जाएंगी, जो आप D9 की वैल्यू जो है इसको फाइंड करेंगे यूजिंग इंफॉर्मेशन। एक्स की इंफॉर्मेशन में आपके पास मीन 300 गिवन है और सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन 10 गिवन है। तो नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करूंगा अपनी डायग्राम को, और डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने ड्रॉ करनी है एक्स की लाइन ऑन एक्स एक्सिस पे, और इसके बिल्कुल पैरेलल आपने जो है वो अपना नॉर्मल का कर्व जो है इसको ड्रॉ करना है और बेल शेप के अंदर, और देन फिर आपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास मीन वैल्यू जो है वो 300 है एक्स की, इसको बिल्कुल मिडल में डॉटेड लाइन के साथ मैंने ड्रॉ किया है, और देन फिर आप अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो 50% डेटा जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस या एरिया जो है फॉल कर रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द मीन वैल्यू ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डाटा इक्वली डिस्पर्स है दोनों साइड से, मीन के दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट, और ये आपका नॉर्मल का कर्व है। और देन स्टूडेंट्स आपने D9 की वैल्यू को जो है वो अपने ड्रॉ करना है अपनी एक्स लाइन के ऊपर। तो ये आपके पास D9 जो ऑटोमेटिकली आपका राइट साइड पे होगा, क्योंकि 90% डाटा आपने कवर करना है। तो 90% डाटा या 90% एरिया जो है उसको आपने कवर करने के लिए आप इसको राइट करेंगे लेफ्ट राइट साइड पे, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 50% डेटा जो है वो आपके पास लेफ्ट ऑफ द मीन है, और आपने नेक्स्ट जो कंप्लीट करना है वो 40% होगा। तो 0.40 स्टूडेंट्स आप राइट करेंगे 0 to Z एरिया, यानी Z की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो 40% एरिया कवर कर रहा होगा, और 10% ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी इससे आगे जो है वो फॉल कर रही होगी आपके पास यहाँ पर D9 से बिल्कुल अबव जो है एरिया जो है वो आपके पास 10% होगा, और रिमेनिंग एरिया आपका 90% होगा 40 एंड प्लस 0.50, ये एरिया आपके पास जो है 90% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास D9 की वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी। और देन स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल x के पैरेलल एक z की लाइन जो है इसको ड्रॉ करना है, और z का मीन विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 बिल्कुल मिडल में राइट होगा, और देन आपने अपना 0 to Z एरिया जो है ये आपके पास 0.40 है, इसको आपने अपने एरिया टेबल, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो टेबल है एरिया टेबल, उसमें जाकर आपने वहाँ से 0.40 को आपने फाइंड करना है मिडल ऑफ द एरिया टेबल, और वहाँ से एरियाज के अगेंस्ट आपको z की वैल्यूज जो है वो फाइंड हो जाएगी, और ये आपके पास किस पोजीशन पर होगी, ये आपके पास वर्टिकली 1.28 और हॉरिजॉन्टली ऊपर टॉप पे 8 पर पड़ी होगी।
तो इस तरह से आप z की वैल्यू जो है इसको फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ z की वैल्यू है। और देन स्टूडेंट्स आपने यूज़ करना है अपना z का फॉर्मूला x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x की जगह पे हम लोग प्लॉट करेंगे, राइट करेंगे d9। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 300 और सिग्मा 10 है, और 1.28 आप z की वैल्यू पॉजिटिव यूज़ करेंगे, और इसको स्टूडेंट्स आपने सिंप्लीफाई करना है। और देन फाइनली जो है वो आपके पास T9 की वैल्यू जो है वो 312.8 होगी। तो इट मीन्स डैट कि ये वो वैल्यू है जो एक्स स्टेटर की 90% ऑब्जर्वेशंस इससे पहले फॉल कर रही होंगी, और 10% ऑब्जर्वेशंस जो है इसके नेक्स्ट यानी फॉलोइंग अपोजिशन पर फॉल कर रही होंगी। तो एक्स डेटा का मीन जो है वो आपके पास 300 है और सिग्मा 10 है, और जो एक्स डेटा है वो फॉलो कर रहे हैं आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप इसको नॉर्मल कर्व से फाइंड कर सकते हैं। The third part, find the value of the 10th percentile P10. P10 means 10% observations or 10% area or data covers under the value of P10. Using information mu equal to 300 and sigma equal to 10, x की information हमें given है. Now students we draw the diagram. First of all similar pattern पे मैं draw करूँगा on x axis पे x की value, x की line को draw करूँगा, और उसके against जो है आपने बेल शेप में एक नॉर्मल कर्व जो है उसको ड्रॉ करना है, और देन अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मीन आपके पास 300 है विद डॉटेड लाइन के साथ, मैंने इसको बिल्कुल मिडल में शो कर दिया है। मीन को आपके पास 10, एरिया जो है दोनों साइड पे इक्वली डिस्पर्स है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 50% एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द मीन एंड 50% एरिया टू द राइट ऑफ द मीन। तो ये दोनों साइड पे इक्वली डिस्पर्स है एरिया। और देन स्टूडेंट्स P10 आपके पास मीन्स के आपके पास यहाँ पे P10 की वैल्यू जो है वो फॉल, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, क्योंकि P10 जो है वो आपके पास 10% ऑब्जर्वेशंस कवर होगी। तो यहाँ पे आपने P10 की वैल्यू जो है उसको राइट कर देना है, और P10 में आपके पास इसको मैंने शेड कर दिया, ये 10% डाटा जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपका 90% ऑब्जर्वेशंस होंगी या 90% एरिया होगा। तो इट मीन्स डेट कि आपके पास राइट साइड पे मीन के 50% ऑब्जर्वे डेटा कवर हो रहा है, 50% एरिया है, और जो रिमेनिंग 0 टू z एरिया जो होगा वो आपके पास यहाँ पे 40% रह जाएगा। तो 40% प्लस 0.550, इट मीन्स डेट टोटल 90%। तो 100% एरिया जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन दिस नॉर्मल कर्व। देन स्टूडेंट्स आपने z की लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है, z की लाइन को, और z की लाइन में आपके पास मीन जो है उसको बिल्कुल मिडल में 0 होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0। और देन फिर आपने स्टूडेंट्स एरिया टेबल में जाना है, और एरिया टेबल में आपने वहाँ पे अपने एरियाज को फाइंड करना है। 0.40 इसके नियरेस्ट वैल्यू आप फाइंड करेंगे विच इज़ 0.3997 इन एरिया टेबल, और उसके अगेंस्ट जो है वो आपके पास वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर जो है वो अपनी z की वैल्यू जो है इसको आपने फाइंड कर लेना है, तो विच इज़ 1.28, और इसको नेगेटिव साइन आपने खुद से राइट करना है क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। और देन स्टूडेंट्स इस z की वैल्यू को हम लोग यूटिलाइज करेंगे और फाइंड करेंगे p वैल्यू ऑफ P10। तो z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x की जगह पे स्टूडेंट्स आपने राइट कर देना है P10, और म्यू की वैल्यू आपके पास 300 है, सिग्मा आपके पास 10 है, और z की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 1.28 जिसको हमने एरिया टेबल से फाइंड किया है। और देन स्टूडेंट्स आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 10 राइट साइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा 1.28 से, और 300 लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा, और देन इसको आपने सिंप्लीफाई करने के बाद यूजिंग कैलकुलेटर 287.2 दिस इज द वैल्यू ऑफ P10। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं अपनी कोई भी वैल्यू। P10 की वैल्यू कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, P80 P90, तो उसको आपने अकॉर्डिंगली एरिया के अकॉर्डिंगली आपने उसको प्लॉट करना है अपने नॉर्मल कर्व में एक्स लाइन के ऊपर, और देन आपने इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल को यूज़ करते हुए आपने वो अपनी वैल्यू जो है पर्टिकुलर वैल्यू उसको फाइंड करना है। इन दिस लेक्चर्स क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स की वैल्यूज को मैंने फाइंड किया यूजिंग द इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। और स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू जो है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं अपने एक्स डेटा की, जिस तरह से यहाँ पे मैंने क्वार्टाइल्स Q1 लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।